Hello, everybody. My name is Akshay. On behalf of the Talks at Google team, I'd like to welcome you to this wonderful event featuring Johnny Lever. Johnny's been a part of the Hindi film industry for 35 years now, with over 400 films. He's been nominated for the Filmfare Award for 13 times and has won 2 of them. So please welcome Johnny Lever. Hey, sir. Wow. So first of all, thank you very much for Tikap. I have water for you. So thank you very much for coming here. As you can see, all these people have joined us to listen to you, learn about your life a little bit, maybe ask you some tough questions. So, sir, let's get started here. You've been a comedian for most of your life. Is comedy something that you can learn, or is this something that you're born with? So either you're funny or you're not. पागल और कॉमेडियंस पैदा होते हैं, पैदाइशी होते हैं. Achha, Born. You're born with it. Okay. I think so because the age of 2, I was 2 years old. That time my mummy used to tell me, I used to copy my grandfather. So हैरान होती थी, ये क्या है, इतना छोटा बच्चा बूढ़े की तरह कैसे बोलता है, बूढ़ों की कैसे तरह कॉपी करता है. तो ये बाय बर्थ है. मेरा बेटा भी 2.5 साल का था तो नरसिम्हा राव जी कॉपी करता था, हमारे पीएम नरसिम्हा राव जी. तो ये बीमारी जो है पैदाइशी होती है. अच्छा. ज़्यादा लोगों को ये बीमारी हो, ये हमारी दुआ है. हाँ? ज़्यादा लोगों को ये बीमारी हो, ये हमारी दुआ है, ताकि दुनिया हंसती रहे. तो फिर हम क्या करेंगे? So, sir, in Bollywood these days, a lot of actors are doing comedy roles, right? And at the same time, there are comedians such as yourself and Paresh Rao. So, what is the difference between a comedian and just a lead actor who's doing a comedy role, as far as? Because अभी कॉमेडी का ट्रेंड चला हुआ है. Yeah. So everybody wants to do comedy. People also laugh now. because पिक्चर में देखो भाई कॉमेडी होनी चाहिए, हंसते खेलते. Because tension everywhere, tension is there. People are living in tension. So producer thinks कि भाई ऐसी फिल्म बनाओ इसमें कॉमेडी हो, लाइट हो, उसमें भी इमोशंस भी डालने हो विथ कॉमेडी. तो राइटर को सबके लिए लिखना पड़ता है, नॉट ओनली फॉर कॉमेडियन. हीरो कहता है यार मैं भी हंसाऊंगा, मेरे को तो 2 लाइनें दे. विलन भी कहता है मुझे भी 2 लाइनें दे. हीरोइन भी कहती है मुझे भी तो ना कुछ फनी, प्लीज राइट समथिंग फॉर राइट समथिंग फनी फॉर मी टू, यू नो. या तो ऐसा होने में हम जो है बेचारे वो गरीब हो गए हैं, इसलिए अमेरिका आना पड़ रहा है. लेकिन यहाँ चाहने वाले हैं, तो कॉमेडी सुनने वाले हैं, ठीक है, वो बहुत खुश हैं कि चलो जानी में आ गए हैं, बैठ के सुनेंगे उनको. Sir, you have done more than 400 films in your career in Bollywood, and you've also done many stage performances. Is there any star or group of stars that you enjoy working with that you think is much easier to be funny with some people versus others? I enjoyed with Govinda. I enjoyed working with Govinda because Govinda fans in the crowd. I've worked with him in many movies. Achha. Then Shah Rukh Khan, Anil Kapoor. Then I worked with everyone. Salman Khan, Akshay. I enjoyed with everyone, but I enjoyed more with Govinda and Shah Rukh Khan. Nice. So at this point, guys, if there's anyone who has questions in the crowd, please raise your hand, and there's a microphone there. So, so how do you come up with your content when you're doing stand-up? What's your inspiration? What's your process for coming up with new jokes and making people laugh? Observation. Every day, 4, 5, 6 hours, we observe, we study, we look people. ढूंढने निकलते हैं, search Google. गूगल भी बहुत हेल्प करता है, ऐसी बात नहीं. आजकल गूगल से बहुत हेल्प. थैंक्स फॉर गूगलेश्वर महाराज की जय हो. जितने भी गूगलर्स यहाँ बैठे हुए हैं उनको मैं ज़रूर थैंक्स कहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी जानकारियाँ गूगल से मिलती हैं, यूट्यूब से हम देखते हैं. इसके लिए मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है. मैं बता नहीं सकता, मेरे ये खुशनसीबी है कि मैं यहाँ आया हूँ. आई एम सो लकी दैट आई एम हियर, रियली. Thank you, sir. We are actually honored to have you here. मगर हमको बहुत ढूंढना पड़ता है. बहुत ढूंढना. जितनी आपकी मेहनत है उतनी हमारी मेहनत है. लेकिन आप लोग बहुत पैसा कमाते हैं, हम उतना नहीं कमाते हैं.
लेकिन आपको बहुत हक है, लेकिन आपने जो ढूंढा है वो कोई नहीं, वो मुगल भी नहीं ढूंढ सका, तो गूगल अपने ज़माने में, है ना। लेकिन स्टैंड अप के बारे में आपने पूछा है, तो फिल्मों में जो कॉमेडी करते हैं, वी डू कॉमेडी इन फिल्म, दे आर राइटर्स आर देयर, scripting is there, directors are there, assistants are there, they help us, and with their support we do good scenes, and of course my contribution also there. But in stand up everything is me, everything is mine, हर चीज मेरा है, there is no writer. स्टैंड अप के लिए राइटिंग नहीं होती है, कुछ पॉइंट्स नोट करने पड़ते हैं, मेरे इतने आइटम्स हैं. Since 35 years I'm doing stand-up. Many items are there, but no, I've not written it. लिखा हुआ नहीं होता, ये सब ब्रेन में होता है. ये भी एक अलग गूगल है, एक दबाता फिर निकल जाता है कि आइटम. मगर बहुत ढूंढना पड़ता है, बहुत सर्च करना पड़ता है, बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है. एक आदमी को कम से कम 10 साल ऑब्जर्व करो, 5 साल ऑब्जर्व करो. कुछ लोग 1 साल में मिल जाते हैं, 1 महीने में मिल जाते हैं, 1 हफ्ते में मिल जाते हैं, 1 दिन में भी मिल जाते हैं. कुछ लोग कहानी, पूरी स्टोरी बनाने के लिए, अगर मेरे को अमिताभ बच्चन जी के बारे में कुछ बोलना है तो मुझे उनकी पूरी स्टडी होनी चाहिए, उनकी फैमिली के बारे में क्या है क्या नहीं, उसकी पूरी स्टडी होनी चाहिए मेरे को. अगर उसकी स्टडी नहीं होगी तो हम नहीं कर सकते. स्टैंड अप को बहुत ईजीली, देखो अमेरिका में स्टैंड अप, यूके में स्टैंड अप की बड़ी इज्जत है, लोग हज़ारों में लोग आते हैं. हमारे हिंदुस्तान में बिकॉज ऑफ ये आपका गूगल की वजह से, व्हाट्सएप की वजह से, जो भी है आपका, इसमें इसकी वजह से हमारी जनरेशन को पता चला स्टैंड अप क्या है. आज कॉलेजेस में स्टैंड अप करने लगे हैं. ये हम 30-40 साल पहले हमारे सीनियर लोग वो करके करके मर गए बेचारे. उनका कुछ नहीं हुआ. आज यू डू स्टैंड अप, या अबे करने तो पहले से हंस रहे हैं. तो स्टैंड अप को आज लोग मानने लगे हैं, उसके पीछे बड़ी मेहनत है जी. थैंक यू वेरी मच. Like audience question? Welcome Johnny bhai, welcome to Google, thanks for coming here. I grew up watching your धक्का मारता है साला and celebrities dog, how would they bark. One question, because आप इतने ह्यूमरस है, नेचुरली इतने ह्यूमरस है कि आपका ह्यूमर निकल जाता होगा. तो मैं, would you be kind enough to share an incident which was like little serious and tragic kind of a thing and you went there and आपकी कॉमेडी निकल गई? मैं एक बार मैयत में गया था. एक मैयत में गया था, सिंधी भाई था, सिंधी लोग थे, सिंधी मर गया था, और मेरे कोई दोस्त ले गया, चलो यार तुम आ जाओ, नहीं यार हमारा दोस्त मर गया है, आ जाओ. मैं चला गया, मेरा कोई पहचान का नहीं था. वो डेड बॉडी पड़ी हुई है, और उसका कोई भाई था, लड़का मरा हुआ था, उसका कोई बड़ा भाई होगा, वो मैयत के पास बैठा हुआ है, बाकी सब लोग ऐसे बैठे हुए. अब वो कितने दुखी थे, क्योंकि दुकान बंद करना पड़ता ना उनको, कोई मर गया. तो वो अब दुखी इसकी वजह से है या उसकी वजह से है पता नहीं, वो अपने लगे हुए हैं. और मैं जैसे गया, वही बता, देखो यार मर गया यार, कैसा, वो अकाउंट नंबर भी बताया नहीं हमको. बड़े मौत सबकी आवे, सब एक हमको भी जाना है एक दिन यार. वो अकाउंट का नंबर बताया नहीं यार मेरे को, बता के कहीं लिख के इधर रखा है, भी नहीं पता है. नहीं यार, ये ऐसी मौत आवे कहीं वो. फिर मेरे को देखा उसने, पहले मेरे को देखा, झटका खाया, फिर हंसा, फिर सीरियस हो गया. तू क्या जाए, मैं मैयत में हूं. तुम्हारा कैसेट सुनता था यार, ये तुम्हारा वो कैसेट आती है ना, वो क्रिकेट का सब सुनता था. ये इसकी गाड़ी में क्रिकेट देखने जाने ली बड़ा, आंख खोल देख जाने ली बड़ा, देख जाने ली बड़ा, तेरे को देख नहीं आया बाबा, तेरा कैसेट सुनता था, इतना पागल था तुम्हारा कैसेट का, बार बार वही कैसेट, ऑडियो कैसेट कॉमेडी का सुनता था. वो कौन सा जो धक्का मारो, एक बार धक्का मारो सुनाओ यार, धक्का मारो सुनाओ. मेरे को बोला धक्का मारो का आइटम सुनाओ. अब मैं कैसे आइटम करूं बताइए मुर्दे के सामने. तो वहां मेरी हालत ऐसी
तो मैं बिल्कुल पजल हो गया। वो सीरियसली बोलता है तो कुछ तो सुनाओ, तो एक छोटा मोटा जोक तो सुनाओ, इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो ऐसा भी कभी कभी होता है। Sir, I have a short follow-up question. Sir, here. हाँ जी। Yes, short follow-up question. Sir, these days, actually, YouTube has created a platform by itself of all the consumers. जो नए audience, young audience है. तो why don't you join something like TVF, which is hugely popular in India, and we would love to see you on that TVF series. मैं भी करूँगा जाके। Are you planning to join TVF? The Total Viral Fever, they produce all these humorous content and showcase it on YouTube. So I was hoping you could become part of that and you can globally reach everywhere. ठीक है, I will try to. Thank you. सर, आपने कई बार कहा है कि कॉमेडी बहुत मुश्किल चीज़ करना। हाँ। Why do you think that is the case? और आप इतने experienced हो तो does it get easier? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अब देखिए, मैं भी 17 साल के बाद शोज कर रहा हूँ। ये 2014 में मैंने स्टार्ट किया और 2016 में यहाँ आया हूँ। 2014 से लेकर 15 तक मैंने 110 शोज किए इंडिया में इन 2 सालों में। 17 साल मैंने शो नहीं किया था। अब साहब 17 साल बाद मुझे शो करना है। इसके पहले मेरे बहुत सारे आइटम्स यूट्यूब में भी है, सब कुछ है ना। अब इसके बाद मुझे आइटम करना है तो मैं क्या करूं? आज देखिए, आप मोबाइल खोलिए, SMS के इतने जोक्स आते हैं, वन लाइनर, धड़ 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 धड़। लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना बढ़ गया है ना। अब मैं कोई ऐसी उल्टी सी बात करूं तो बोले यार जॉनी भाई बहुत पीछे है यार, अब दुनिया कहाँ आगे चली गई, कहाँ है ना। तो हाँ, मैं परेशान था कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। मुझे 7-8 साल सोचना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। और जितने शोज थे, ऑफ कोर्स देखा मैंने, जितने कॉमेडी के, इसके उसके, जितने भी यहाँ के वहाँ के, पूरा रिसर्च किया मैंने। पूरा ढूंढ के देखा, आहा ये माल बिक रहा है, मेरे को दूसरा माल बेचना पड़ेगा, इसके ऊपर जाना पड़ेगा। अगर मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा तो आपको कैसे मजा आएगा। मैं आज की बात करूंगा ना, तो आज की बात कहने के लिए मुझे आज में जीना होगा। तो हर पल मेरी ऑब्जर्वेशन चलती चाहिए, ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। अगर मैं ऑब्जर्व नहीं करूंगा ना, मेरे टैलेंट को ब्रेक लग जाएगी और मैं बंद पड़ जाऊंगा और अपनी दुनिया में रहूंगा। मेरा टाइम ऐसा था, एक टाइम पे बैठ गया, जंग लग गया। तो ये होता है। इसके लिए हम लोग को कॉमेडियन को हमेशा जिंदा रहना पड़ता है, हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। रोज 5-6 घंटे मैं मेहनत करता ही रहता हूँ। बॉम्बे में रहा तो पेपर्स पढ़ूंगा, फलाना पढ़ूंगा, ये देखूंगा, वो देखूंगा, जो मेरी ज़रूरत है वो मैं निकालूंगा। ये चाहिए, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा घूम नहीं सकता हूँ ऑब्जर्व करने के लिए। तो हमारे लिए ये सब चीज़ें हैं, पेपर्स हैं, फलाना है, ये है, वो है, न्यूज़ है, गूगल है, फलाना, इस पर सब ढूंढता हूँ। मेरे को जो चीज़ें चाहिए उसमें मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आ गया, उससे हेल्प लेता हूँ, करता हूँ, नहीं तो फिर और कुछ स्टडी करता हूँ। इसके लिए मेरे को चाहिए। पहले क्या ये सब नहीं था तो खुद को जाना पड़ता था मुझे। अब फेमस होने के बाद में जा नहीं सकते हैं तो किसी को पूछना पड़ता है, आजकल ट्रेनों में क्या हो रहा है, रिक्शा में क्या हो रहा है, फलाना क्या हो रहा है। तो आज कुछ चीज़ बनाने के लिए बहुत मेहनत, सीरियस बिजनेस है कॉमेडी, बहुत सीरियस बिजनेस। तो काफ़ी मशहूर कॉमेडियंस हैं दुनिया भर के। रॉबिन विलियम्स है, चार्ली चैपलिन है। दीज पीपल सफर्ड अ लॉट इन देयर लाइव्स, दे वर वेरी डिप्रेस्ड। उसमें से उन्होंने लोगों को हंसाया। तो क्या आप भी कभी कोई दुखी सिचुएशन आया हो, उसमें से आपको कभी कुछ इंस्पिरेशन मिल के आपने उसमें से कहीं जोक बनाया, ऐसा कुछ होता है, या सिर्फ खुश के सिचुएशन में से जोक निकलते हैं? देखिए, ये सवाल जो है ना बहुत से लोग पूछते हैं। कॉमेडियन अंदर से बहुत दुखी होता है, बेचारे लोगों को साथ अंदर से रोता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो हर इंसान की जिंदगी में होता है तो कॉमेडियन की जिंदगी में होगा। कोई दूसरों के माँ बाप मर रहे हैं, उसके भी माँ बाप रहेगा, उनका भी बच्चा कुछ होगा, इनके घर में कुछ होगा, फलाना, ये ट्रेजेडी, हर चीज हर कॉमेडियन की जिंदगी में भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही दुखी है, बहुत एहसान कर रहा है लोगों पे, नहीं। रियल कॉमेडियन होता है। अगर दुखी कोई कॉमेडियन था मेरी नजर में, वो चार्ली चैपलिन था और कोई नहीं था, ओनली चार्ली चैपलिन। अगर उनकी कहानी आप पढ़ते हैं तो वो उस आदमी की जिंदगी में खुदा ने, परमेश्वर ने ऐसा दुख
डाल दिया कि उसको खुद के दिमाग में ऊपर वाले ने डाल दिया कि भाई देख ये दुख है, तूने तूने देखा है तेरे घर में जो दुख है, और ऐसे दुखी बहुत है दुनिया में, तुझे उनको हंसाना है। शायद ऊपर वाले ने उनके दिमाग में डाला हो और उन्होंने इसके सिवा कुछ नहीं किया। और हम लोग क्या करते हैं, कॉमेडी करते हैं, बहुत लोगों पे एहसान कर रहे हैं, डिप्रेशन हो गया, वो ले लिया, ड्रग्स ले लिया, फलान ले लिया, बड़ा एहसान। उसमें बाद में आप तकलीफ में आते हैं, खुद ही बोले यार तू हीरो की तरह हीरोइन को पटाने को जा, तू कॉमेडियन है, वो कॉमेडी लड़की को पटाना यार, हीरोइन को क्यों पटा रहा है? वो नहीं पटी तो डिप्रेशन में आ गया आप। कॉमेडियन की तरह प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, है ना? तो एक सिंपल सी बात है कि कॉमेडियन आदमी दुखी अगर होता है तो उसकी ह्यूमर में मेरे हिसाब से नेगेटिविटी आएगी। अगर वो खुश है तो उसकी ह्यूमर में पॉजिटिविटी होगी, अच्छी बातें होंगी। अच्छी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बीवी यहाँ बैठी है। दुख का चैनल तो वही है ना। तो वो चीज़ वेरी बहुत खुश रखती है मुझे, मैं खुश रखता हूँ। प्रॉब्लम जो कोने को सवाल ही नहीं पता, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। Yeah. So you brought up your wife. मेरी तो शादी हुई नहीं है, तो मैं अभी टिप्स नहीं हुई, इसलिए मैं टिप्स ले रहा हूँ आपसे। जब आपकी आर्ग्यूमेंट होती है, हाँ, तो आप हंसा के खत्म कर देते हो या फिर आपको भी डांट पड़ती है? देखिए समझ गए नहीं हुई शादी, नहीं समझे आप। नहीं समझे। आज तक बड़े बड़े लोग रहे ना, बड़े बड़े, उनकी औरत के सामने चली नहीं। अच्छा। औरत के सामने नहीं चली है। ऊपर वाले ने क्या उनको दे दिया पता नहीं, उनके लिए क्या गुण दे दिया, क्या टैलेंट दे दिया, क्या ताकत दे दी कि आदमी कितना भी ईगो प्राइड वाइड एक दिन उसके सामने बाकी बेजार होके फ्रस्ट्रेशन में आके दोस्तों से कहेगा क्या कर सकते हैं यार, कुछ आई एम हेल्पलेस यार। वो भी बोलेगा मी टू यार। मैंने देखा आप जब बात कर रहे थे तो आपने आपकी वाइफ से नजर नहीं मिलाई। वो दिस इज आल्सो समथिंग आई एम लर्निंग। नहीं। ऑडियंस क्वेश्चन। सो मच, आप गूगल आए, बहुत अच्छा लगा। जी। आप प्रोफेशनल कॉमेडियन रहे इतने टाइम से, अब आपका कॉमेडियन होने का क्या असर है आपकी डे टू डे पर्सनल लाइफ पे? आप फ़र्क समझते हैं कब आप प्रोफेशनली कॉमेडी कर रहे हैं, या जब आप डज इट हेल्प यू टू डील विद कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन? डू यू लाइक थिंक ऑफ इट इन अ कॉमेडिक सेटिंग? डज इट हेल्प यू इन दैट सेंस? नहीं अच्छी तरह नहीं समझ, मतलब एंड में क्या बोला आपने, क्या मतलब जैसे अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई आप समाधान ढूंढ रहे हैं, तो क्या आपकी कॉमेडिक थिंकिंग ऐसा कुछ आप उसका हल निकाल लेते हैं हंस के, लोगों को हंसाकर, ऐसा कुछ आप उसके फर्क लगता है कॉमेडियन होने का, या वो आपको प्रोफेशनल ही लाइफ है और आप पर्सनल लाइफ में नहीं लाते उसको? नहीं देखिए ऐसा है, कॉमेडियन आदमी को कोई सीरियस लेता नहीं है, एक्टरों को भी कोई सीरियस लेता नहीं है। अगर मैं कुछ बोलूँगा मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया, चल फेंकता है, इसकी पेमेंट नहीं मिलेगी इसलिए नहीं आया, ये शो में नहीं आया या फिर वगैरह। तो हम कलाकारों को तो कोई सीरियस लेता नहीं सीरियसली, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए हमको। तो हम लोग जो है कॉमेडियन को मेरे हिसाब से ये सोचना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है, पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। कुछ भी हो सकता है लाइफ में। हाँ फिर भी हम इंसान हैं, कभी कभी तकलीफ होती है, कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं कि इंसान, मेरे साथ एक ऐसा हादसा हो गया था, मैं 3 साल तक कोई जोक नहीं बना सका, कोई आइटम नहीं बना सका। 3 साल तक मैं ऐसा बिल्कुल कॉमेडी भूल गया, जैसे चुपचाप एक कोने में कहीं बैठ जाता था। मेरे साथ वो मैं आपको बता रहा हूँ जो है। तो फिर मैंने सोचा यार मैं ऐसा क्यों बैठ रहा हूँ, मैं अकेले हूँ कि मैं इसीलिए मैंने ये बातें की। ये ऐसा तो कईयों के साथ। फिर चार्ली चैपलिन को देखा, अरे बाप रे, चार्ली चैपलिन इतना बड़ा आदमी, उसकी माँ चाहती थी हमेशा कि मेरा बेटा जो है एक स्टार बने, कुछ तो बने, और जब बन गया दुनिया सब पहचानने लगी, माँ पागल हो चुकी, माँ नहीं पहचान रही है। तो कितनी बड़ी ट्रेजेडी होगी, आप समझे कि नहीं? मैं तो उनके सामने एक पैसा नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, कोई नहीं दुनिया में। चार्ली चैपलिन सामने कोई कॉमेडी नहीं हो सकता है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वो एक ही थे, आप समझे ना? तो हमने कहा यार ये क्या चीज़ है, हटाओ। वो 3 साल के बाद मैंने कहा नहीं लानत है मेरे पे,
मैं इस तरह बैठ रहा ये कर रहा ऐसा लगता मैं दुनिया पे एहसान कर रहा हूँ। नहीं ये गलत है। बोले ये चीज़ें होती रहेंगी, जान दो, अपना काम मत, अपना काम करो। तुम्हें कोई सीरियस नहीं लेता जॉनी, डू कॉमेडी। तेरे को कॉमेडी नहीं समझते, तुम मैयत में भी जाता है लोग तेरे को देख के हंसते हैं, तू तो कॉमेडियन है। और अपना काम करते रहना। मेरे साथ लाइफ में कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा ये ट्रैक जो है कॉमेडी ट्रैक, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उसको पकड़ के सब काम करूंगा। रोना है, धोना है, सब कुछ कर लूंगा, अपने ट्रैक पे आ जाऊंगा। तो ये हमको करना पड़ेगा एक्चुअली, ये हमने सीखा है, ये चीज सीखी मैंने। सर आपने मिमिक्री से शुरू किया आपका काम कॉमेडी में, उसके बाद स्टैंड अप एंड देन मूवीज। तो इन सब में से विच इज़ योर फेवरेट स्टाइल? अगर आपको अभी सब कुछ छोड़ के एक ही करना पड़े तो आप क्या करोगे? यही करूँगा, स्टैंड अप करूँगा। स्टैंड अप करोगे। जो अभी शो कर रहा हूँ ना, यही करूँगा। जॉनी लीवर लाइव जो मैं अपना करते आया हूँ, जॉनी लीवर लाइव ये सालों से कम 86 से कर रहा हूँ मैं, 86 से। बीच में गैप लिया था, लेकिन मैं यही करूँगा, क्योंकि ये क्या है कि बिल्कुल पब्लिक के सामने ऑडियंस यूँ हंसती है, बिल्कुल जिंदा रोकड़ा धंधा है। ये फेंको ठका ठक, क्या इसका धंधा है ये, क्या इसका बिजनेस है, समझे कि नहीं? अच्छा करो तो पैसे आएंगे, वाह वाह हा हा ही, नहीं तो अंडे टमाटर दोनों आएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है। और जितने लोग मुझे सुनने आते हैं वो कॉमेडी के, उनके अंदर भी एक कॉमेडियन है, उनके अंदर भी एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वर है। वही लोग मुझे सुनने आएंगे, वही लोग हमारा शो एंजॉय करेंगे। बाकी क्यों आएंगे? बाकी लोग नहीं आ सकते। जो कॉमेडी को, कॉमेडी से जिसे मोहब्बत है, जिसको कॉमेडी से मोहब्बत है, वही आएंगे। तो मुझे इसलिए और अच्छा लगता है। फिल्मों में क्या है, फिल्मों का काम एक डिपार्टमेंट अलग है। आपने वहाँ काम किया, ये किया, रिलीज होगी नहीं होगी, बाद में रिलीज हो रहा है, खाना बनाया, फ्रिज में रखा, उठा के गर्म करके आपको खिला रहे हैं, वो है। यहाँ रोकड़ा है ना, ठक 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 ठक। तो मज़ा इसमें आता है मुझे लाइव शोज से। नमस्ते सर। नमस्ते सर, इस बारे में पूछना था, जो ये जो यंगर जनरेशन आ रही है कॉमेडियंस की, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? यंगर जनरेशन जो आ रही है वो, उनको लगता है ह्यूमर जो है वो डबल मीनिंग और गालियों पे है, यही ह्यूमर है, ऐसा उनको लगता होगा। लेकिन वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। टैलेंट ऊपर वाले की देन है। जब कोई बच्चा कुछ अद्भुत काम करता है, कोई भी बच्चा अच्छा डांस करता है, कोई अच्छी हरकतें करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? गॉड गिफ्टेड है यार, इज गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड। जैसे बड़ा होता है, प्रोफेशनल बन जाता है, गॉड इधर गिफ्ट इधर, कोई अलग ही शिफ्ट हो जाता हो। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। वो गॉड गिफ्ट जो चीज़ है ना, उसको कैरी करना चाहिए, उसको साथ में लेके चलो, तो आप कभी गलत या फालतू चीज़ें नहीं करोगे। देखो, छोटी मोटी उल्टी सीधे बातों से हंसाना या कुछ भी करना वो बड़ी बात नहीं है। जो चीज़ें हम छुप के करते हैं उसको खुलेआम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं है। साफ सुथरी बातों पर कॉमेडी लाना। फॉर एग्जाम्पल किशोर कुमार जी को आप फिल्में, उनकी फिल्में ला के देखिए, साफ सुथरी कॉमेडी की उन्होंने, साफ सुथरी कॉमेडी, एक्सप्रेशन चेहरे, बॉडी लैंग्वेज से, स्वर से, अपने गानों से, कुछ भी गाते थे वो, कुछ भी करते थे। ये क्या है? हाँ जी, है ना? तो ये किशोर कुमार जी, हम उनके फॉलोअर हैं। महमूद साहब बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत बड़े कॉमेडियन थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं डबल मीनिंग में चले जाते थे। महमूद साहब ने खुद किशोर कुमार जी की तारीफ की, कान पे हाथ रख के कहा, जॉनी हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, एक साथ रहे हैं, बचपना गुजरा है, लेकिन बेटे किशोर दा बहुत बड़ा आर्टिस्ट था यार, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। तो ये मेरी खुशनसीबी कि मैं दोनों से मिल चुका हूँ, दोनों ने बहुत प्यार दिया मुझे, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो आज की जनरेशन से मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, आपने पूछा तो ये गूगल के जरिए पहुँच भी जाएगी बात, उनसे कहूँगा कि मेहनत करें आप और अच्छी बातें लाएं। और ठीक है, कुछ चीज़ें, कुछ लोग मिलते हैं सुनने वाले, एंजॉय करते हैं, वो कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी होगा। अच्छी बातें आखिर तक रहती है, दूर तक चली जाती है और लंबे अरसे तक काम करती है। तो टैलेंट का इस्तेमाल होना चाहिए, टैलेंट का इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसे बातों का नहीं, किसी को इंसल्ट किया, वो किया, ये किया, वो किया, वो बहुत इजी ह्यूमर है, वो कुछ हद तक कुछ लोग एंजॉय करेंगे। आई एम सॉरी, मैं दिल की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ लोग हद तक एंजॉय कर सकते हैं, सब मिलके। मेरा शो है, मुझ जैसे लोग करने वाले और बहुत से लोग हैं, फैमिली ऑडियंस, बहन भाई बच्चे बाप बैठ के देखें, उनको नजरें चुराने की जरूरत ना पड़े। ये कोई जोक अगर ठक ठक
बेटा गाड़ी कहाँ पार्क की बेटे? वो वहाँ लगाते ना जो खत्म होने लगा, हाँ बेटे, हाँ डैडी पे वो ऊपर से यहाँ, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाकायदा खुल के हंसते हो। तो क्लीन ह्यूमर लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत, बहुत मेहनत, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत है। तो यंग जनरेशन आज उनके पास इतने साधन है, देखिए गूगल है, ये है वो है, ऑब्जर्व करने के लिए, उसमें से निकाल के अपनी स्टडी करके अपना टैलेंट मिला करके उन इतना कुछ अच्छी इतनी चीज़ें निकाल सकते हैं। कुछ अमेरिका में कुछ ज़्यादातर तो गालियों वाले हो इधर, स्टैंडअप वाले, कुछ लोग बहुत कमाल के आर्टिस्ट होते हैं, कमाल के आर्टिस्ट। उनको देखकर सीखना चाहिए कि यार टैलेंट भी कोई चीज़ है। आज मैं जो शो लाया हूँ, मेरा जो शो है यहाँ पर 18 को होगा सैन फ्रांसिस्को में, सैन डिएगो में है 16 तारीख को, 17 को एलए में है, 18 को यहाँ है। तो उस शो में आप देखेंगे, मैं अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने शो देखी हो सब, जिन ने भी शो देखा, वो लोग इतने खुश हुए और इतनी दुआएं दे के जाते हैं। बुजुर्ग लोग आके बोलते कि बेटा बहुत अच्छा लगा तुम्हारा शो, बहुत अच्छा, क्योंकि मैं उसमें कॉमेडी के साथ कुछ ऐसी बात कहता हूँ जो टच करती है आपको, समझे कि नहीं? तो उसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की है। लोग जो एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं उससे बढ़ के मैं देता हूं। अगर उससे मैं बढ़ के नहीं दूंगा, मुझे शो करना नहीं चाहिए। तो ये चैलेंजिंग है। आप लोग जो काम करते हैं यहां पर, ये चैलेंजिंग काम है। आपने दुनिया को हिला के रख दिया हुआ है, आज एक मुट्ठी में आप कर दिया, दुनिया को हाथ में दे दिया है। ये काम आप लोगों ने किया है, तो ये चैलेंजिंग काम होना चाहिए हर फील्ड में। तो हमारे लिए भी चैलेंजिंग है। तो हमारी जनरेशन के लिए बोलूंगा, आने वाली जनरेशन, मेहनत करो और कर लो दुनिया मुट्ठी में। नमस्ते जॉनी साहब, मेरा क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक फिल्म करें, कॉमेडी फिल्म करें जिसमें आप लीड हो? मैंने सोचा था, बहुत जबरदस्त सोचा था मैं, लेकिन बाल बच गया मैं। क्योंकि क्या होता है ना, हम तो एक तो आर्टिस्ट हैं, वो भी कॉमेडियन, ठीक है, हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है। पिक्चर प्रोड्यूस करना जो है ना, वो डिफरेंट, अलग ही खाता है वो, समझेगी नहीं? अब देखिए जिसने हाँ कॉमेडियन ने किया, वो सब बर्बाद हो गए। महमूद साहब, मुझे मतलब उनकी डेथ के 5 महीने पहले मैं उनको कैलिफोर्निया में मिलने गया था, पेंसिल्वेनिया में मिलने गया था। वो उनका ससुराल है वहाँ पे, तो उनसे मैं मिलने गया था। मेरे को जॉनी आ जाए, मैं उनको मिलने गया था। तो ऐसे बातों में मेरे को, तो जॉनी तो पिक्चर फिल्म तो नहीं बना रहा तो मैंने ऐसे पॉज लिया, हाँ बना ले। नहीं, तूने जिस तरह पॉज लिया मतलब बनाने वाला है तू। नहीं, मैं सोच रहा हूँ, इधर हाथ ला, इधर कसम खा नहीं बनाएगा तू। तो मैंने कसम खा ली महमूद साहब, वरना तो मेरे दिमाग में था कुमार बाप टाइप की एक फिल्म बनाऊं, ये बनाऊं वो बनाऊं। तो क्या है कि कॉमेडियन आदमी जो है ना, एक अलग डिपार्टमेंट का होता है, उसका प्रोडक्शन से नहीं होता। प्रोडक्शन वगैरह जो संभालना, ये सब चीज़ें जो है ना, उसका बहुत नॉलेज होता है। उसके लिए कम से कम 10-12 साल निकालो, उसमें सीखो, ये करो, उसके बाद में कर सकते हैं। फिर से ABCD से मैं शुरू करूँ, तो इसके लिए मैं 2 बार सोचा करूँ, फिर नहीं हुआ। अगर कोई बनाए तो हम करेंगे, कोई अच्छा सब्जेक्ट हो या कोई, हम तो भी नहीं। आगे जाके पता नहीं कोई लॉटरी वॉटरी लग जाए, बहुत उल्टा सीधा बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, तो शायद आप प्रोड्यूस कीजिए नहीं पिक्चर। बड़ी घर की लगती हैं आप, बड़े घर की लगती हैं। बहुत ठंडा है, सर आपके जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है, कॉमेडी वगैरह, दैट वी रियली एंजॉयड, बट माय क्वेश्चन इज दैट कि बिहाइंड स्क्रीन, जैसे आपने गोविंदा सर या अनिल कपूर सर या शाहरुख खान, इन सबके साथ कोई मज़ेदार इंसिडेंट हुआ है जो आप शेयर कर सकते हैं, बिहाइंड स्क्रीन अनस्क्रिप्टेड काइंड ऑफ? मज़ेदार तो बहुत हुए हैं यार।
हाँ जी हाँ, शो में कहिएगा। नहीं सर, थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। पिछले 5-6 सालों में कई बार इंडिया से रिपोर्ट्स आए हुए हैं कि किसी ने कुछ फेसबुक पे किसी नेता के सामने कुछ लिख दिया और उनको अरेस्ट करके परेशान किया काफ़ी। तो आप इस बारे में सोचते हो कि आप जब स्टैंड अप कॉमेडी में जब कंटेंट करते हो तो किसी को कोई नेता है, समवन इन पावर, उसको उनको ऑफेंड नहीं करना है, इज दैट समथिंग ऑन योर माइंड, या आप दिल से जो आता है आपके लिख देते हो? नहीं, थोड़ा सोचना पड़ता है क्योंकि वो जिस नेता पे आप कुछ करते हैं या कुछ भी कैरिकेचर अगर करते हैं, वो नेता कुछ नहीं बोलता है, लेकिन चाय से ज़्यादा केटली गर्म होता है ना, दूसरे आ जाते हैं, आपने बोला कि ये कैसे बोला हमारे नेता के बारे में, वो ज़्यादा करते हैं। तो मैंने कहा यार झंझट में कौन पड़ेगा, बात ऐसी करो ना उसको तकलीफ हो ना इसको तकलीफ हो। तो थोड़ा सोच, इसीलिए ना बहुत मेहनत लगती है कॉमेडी में। तो इसके मतलब उस पर करो कुछ और पता भी नहीं चले, शॉल पे लपेट के मारो तो उसके लिए ज़रा टाइम लगता है और थोड़ा बच के चलना पड़ता है, क्योंकि ये चाय से ज़्यादा केटली गर्म वाले ज़्यादा परेशान करते हैं। तो आप जब शो करते हो, स्क्रिप्ट आपकी जो प्रिपेयर करते हो, तो उसके बाद आप ट्रायल रन करते हो आपके फैमिली के सामने? वो तो अभी शायद आपके जोक से तो आदत उनकी हो गई होगी, लेकिन कोई स्मॉल छोटा ग्रुप हो जिनके सामने आप ट्राई करते हो कि यही जोक चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, ऐसा कोई है आपका प्रोसेस? हाँ, मैं करता हूँ अपने एक आध दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ कि ये आइडिया है, ये फलाना है, तो करता हूँ। कभी एक बार ऐसे ही बाथरूम से बाहर निकला, कुछ दिमाग में कुछ बात आई, तो मेरी बीवी और मेरा बेटा बैठा हुआ था, तो मैंने कहा ऐसा आइडिया है, ऐसा। मेरे बेटे ने कहा डैडी इसको बनाओ ना आइटम प्लीज़, इसको बना दो। बन गया वो, समझे कि नहीं? तो ऐसे ही एक बार मैंने आइटम बनाया, एक उस पर ज़रा सा सोच के बनाया, तो थोड़ा सा मेहनत की मैंने। मेरी बेटी लंदन में पढ़ रही थी वो टाइम पे, तो मैंने उसको सुनाया, मतलब जब मैंने ऐसा कुछ बनाया तो वो कैसा लगता है? बोले डैडी ये तो कमाल है। मैंने कब सुना था जामी, आपको याद है? 4 साल 5 साल पहले सुनाया था। मैंने कहा यार एक छोटी सी बच्ची आती है, जिसे माँ बाप बोलते ना बोले ABCD सुना दो, मेरा बच्चा पूरा A to Z बोलता है। मेरा बच्चा मेरी बच्ची तो कमाल, पूरा A पर एप्पल, B पर बैट सब बोलती है, आप लोग को सुनना पड़ता है। अच्छा तो ऐसा होता है ना। एक बच्ची ने मुझे हैरान करी, बोले A for एप्पल सुना दो बेटा अंकल सुना दो A for एप्पल। हाँ सुना। A for apple, B for blackberry, C for CPU, D for download, E for email, F for Facebook, G for Google, H for Hotmail, I for internet, J for joystick, K for keyboard, L for laptop, M for monitor, N for network, O for OLX, P for printer, Q for QuickStart, QuickStart.com, R for restart, S for software, T for Twitter, U for upload, V for virus, W for WhatsApp, X for Xerox, Y for YouTube, Z for zip file. हेलो सर, हाँ थैंक जी। यू फॉर कमिंग हियर। आपने भी सवाल आपसे पूछा होगा कि यदि आप कॉमेडियन नहीं बनते तो क्या बनते? ये कोई और प्रोफेशन आप करते जैसे डॉक्टर होते, लेकिन आपके अंदर स्टिल कॉमेडी का वो भूत रहता है, तो आप वो प्रोफेशन कैसा कर रहे हैं? नहीं, मैं तो खैर कॉमेडी बनना ही चाहता था बचपन से, लेकिन अगर कॉमेडियन नहीं बनते तो मैं एक शौकिया मैं करता था, ऐसे शौक से। नहीं तो मैं आज हिंदुस्तान लीवर में ही काम करता था, फैक्ट्री में करता था काम, तो वो लीवर उधर ही रहता था, वो टैलेंट की वजह से लीवर बाहर आ गया वरना उधर के उधर ही लीवर बड़ा रहता। तो एक मामूली बस एक वर्कर था वहाँ पे, मजदूर था। मेरे डैडी वहाँ काम करते थे, मैंने वहाँ 6 साल काम किया। तो वो करते वहाँ से मुझे नाम मिला, वहीं से नाम मिला मुझे। मैं फैक्ट्री में एक्चुअली मैं बहुत ही मामूली वर्कर था,
और फैक्ट्री के जितने बड़े बड़े अफसर होते थे, जीएम हमारे पर्सनल ऑफिसर्स, ये वो मैनेजर से जो खास उन सब की नकलें मैं करता था। तो वहाँ एवरी ईयर हमारा लिवर स्पोर्ट्स क्लब का शो होता था, उसमें मेरे को डाल देते थे। तो मैं जितने फेमस थे उन सब की नकल, मैंने कहा नाम नहीं लूँगा, आप लोग पहचानो, आप बोलो वहाँ से। तो वहाँ से जब मैंने बोला, ऐसा किया प्रोग्राम, तो एक सिक्योरिटी ऑफिसर हमारे यूनियन लीडर था, वो आया, उसका नाम सुरेश भोसले था, बेचारा अभी चला गया वो आया माइक लेके, दादागिरी उसकी होती थी, माइक लिया, काय केलंस तू आज, सर्व लिव्हरची करून टाकलीस, आजपासून तुझं नाव लिव्हर, जॉनी लिव्हर, ऐसा बघा अनाउंस किया उसने 10,000 लोगों के बीच में। तो आज तूने सब लिवर की कर डाली, आज से तेरा नाम लिवर। तो लिवर हो गया उस दिन। उसके 2-3 दिन बाद मेरा कहीं शो था, तो मेरा नाम, जब शो में जाता था, छोटे बड़े शो करता था मैं, तो बोलता है जॉनी आ रहे हैं आपके सामने, जॉनी। मैंने कहा 1 मिनट, जॉनी नहीं, जॉनी लीवर। पहली बार मेरे नाम जॉनी लीवर है। तो लिवर के बाहर आएगा, वरना लिवर के अंदर ही होता था। सर या गूगल में एंड इन दिस एरिया जो भी कंपनीज, हम काफ़ी सोचते हैं कि लड़कियों को, औरतों को टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा उनको रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाए, क्योंकि यहाँ इंजीनियरिंग में स्पेशली जो मर्द हैं वो उनकी प्रोपोर्शन ज़्यादा है। तो ये काफ़ी चर्चा यहाँ होती है, और मैंने देखा है कि बॉलीवुड में भी यही है, अगर कोई स्ट्रांग विलन हो तो कभी वो औरत तो ही नहीं है, कभी औरत स्ट्रांग विलन का कैरेक्टर नहीं करती है, कभी मेन एक्टर जो होता है फिल्म में इज ऑलवेज अ मेल। तो ये आपका क्या विचार है इसमें? इज देयर एनीथिंग हैपनिंग इन बॉलीवुड टू चेंज दिस, या कोई सोच भी नहीं रहा है? मैं अच्छी तरह समझा नहीं। मैं अब बॉलीवुड में देखें फिल्मों में, तो जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो सब मेल्स हैं। हाँ, सब फीमेल ज़्यादा होते नहीं है। मेन विलन अभी आप कहीं देखो तो जो भी बड़े बड़े नाम हैं वो सब मेल्स हुए हैं। तो ये इज दिस अ कंसर्न कि भाई लड़कियों को, औरतों को आगे कैसे बढ़ाया जाए? क्योंकि यहाँ तो हम बहुत सोचते हैं ऐसा। वाह, बिल्कुल इंडस्ट्री में हो रहा है अभी। आप जो कह रहे हैं ये हो रहा है। पहले लड़कियां बिल्कुल नहीं थी हमारी इंडस्ट्री में। आज लड़कियां देखो, ड्रेस डिज़ाइनर्स लड़कियां हैं, असिस्टेंट्स हैं, डायरेक्शन में हैं, और प्रोडक्शन में हैं, और बहुत सारी चीज़ों में हैं, साउंड में, यहाँ वहाँ। इतनी लड़कियां लड़के कम हैं, प्रोडक्शन में लड़कियां ज़्यादा अभी। और लड़कियां काम कर रही है बाकायदा इज्जत के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ काम करती हैं, और सब पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। लेकिन ये हो रहा है। और फिर देखिए पिक्चरें भी बन रही हैं। अब देखिए क्या नाम है, तुम्हारे मेल की तरह नहीं काम कर रही, क्या नाम है अपना, कंगना रावत, दारू पी के है क्या बोल रहा साले, ऐसी बात कर रही है। तो ये हो रहा है। So on that note, आपकी बेटी आई हुई है। I'd like to invite her up here. मैं निकलूं? ना, आप बैठो, आप कहाँ जा रहे हो? मैं निकलता हूँ। आइए, आप रहिए ना। चलो मैं यहाँ बीच में जाता हूँ आपके। Okay. Jamie, welcome. Thank you. Thank you for joining us. So, Jamie, I am actually very interested in knowing कि आप दोनों के बीच में आपने जब आपके पिताजी को कहा कि मुझे कॉमेडी में करना है काम, तो उनका एक तो रिएक्शन क्या था, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उन्होंने आपको सिखाया, और डिड ही लेट यू फॉल एंड लर्न ऑन योर ओन? नहीं, हुआ ये था कि आई वॉज इन लंडन एट दैट पॉइंट। आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड पढ़ाई करते करते आई वॉज डूइंग अ कपल ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो। जैसे मैं प्लेस करती थी, आई टू वॉच अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई टू ऑल्सो डू माई लिटिल बिट प्लेस वगैरह ऑन द साइड। एंड व्हाइल आई वॉज देयर, मैं एक कॉमेडी शो देखने गई, एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक मुझे वहाँ होना चाहिए। I should be on that stage, and I should have the mic in my hand, and I know that I can do a better job. Check. I know that I can do a better job with that. So ये ऐसी वाली feeling आने लगी, and then I just at that time मेरे father, he just happened to be in London tour के लिए, and मैंने उनके सामने बताया कि उनको बताया कि I want to do comedy, and then he said it came as a complete surprise. पहले जब बताया माँ को बताई, हाँ, तो मेरा मूड खराब हो गया। मैं यार तुम पढ़ रही हो क्या, ये करना है, वो करना है, खुद का कुछ बिजनेस करना है, कुछ जॉब करना है, फलाना करना है, ये अचानक स्टैंड अप क्या है यार,
हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, तुम कहाँ कहाँ घूमोगी, ये करोगी, लड़की स्टैंड अप करेगी, मैं थोड़ा सा ये हो गया था। फिर बहुत जबरन ने उसको तो वही करना है, यही करना है, यही करना है। फ़ोन करती है, रात रात को बोलती है करना है, क्या करती हो। तो फिर मैं लंदन गया, मेरा लंदन में शो था एक, कई दो तीन जगह, यूके में 3-4 शोज थे, प्रॉपर लंदन में शो था मेरा। तो मैंने उनको कहा, जैमी अगले हफ्ते मेरा शो है लंदन में, मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम दूंगा, तुम परफॉर्म कर लो, अगर तुम अच्छा कर गई तो फिर मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, फिर तो करना तुम देख लो, 10 मिनट तो मेरा। मैं ये था, मैंने उसको दे दिया ना एक चैलेंज, क्योंकि बड़ा स्टेज, टिकट शो, और इसने कभी कोई शो की नहीं, वहां 10 मिनट जो करके बताओ। उसके बाद अब बताइए क्या किया आपने मटर। तो मैंने लंदन के जो ऑब्जर्वेशंस थे मेरे, आई जस्ट रोट देम डाउन कि लंदन में कैसे लोग बात करते हैं, हेलो हाउ यू डूइंग, ओके सॉरी नो थैंक यू, इस तरह की बातें करते हैं। ट्रेन में कैसे बैठते हैं, कैसे सफ़र करते हैं, ऐसे बैठते हैं सीरियस ट्रेन के अंदर जैसे कि कोई फ्यूनरल में बैठा हूँ, और एक अकेला जो आके फाड़ फाड़ कर देख रहा होता है वो इंडियन होता है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस थी। आई जस्ट स्टार्टेड सेइंग ऑल दिस एंड देन जैसे मैंने परफॉर्म किया, ख़त्म हुआ परफॉर्मेंस एंड पीपल जस्ट स्टूड अप एंड दे स्टार्टेड अपलॉडिंग। तो वहाँ से मुझे मेरे फादर ने परमिशन दी एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग कॉमेडी। आइटम का वो तो बताओ क्या था, वो सैटरडे संडे, उसके बाद में फिर आइटम क्या था? ये था कि जैसे लंदन में पूरे हफ्ते लोग काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे बहुत काम करते हैं, और ऐसे काम करते हैं जैसे थोड़ा थोड़ा भागा भागा सा, थोड़ा थोड़ा भागा भागा सा, भागते रहते हैं, घूमते रहते हैं और काम करते हैं। और जैसे ही संडे आता है, सैटरडे आता है, तो छोड़ छाड़ मैं अपने विलियम और प्रिंस की गली, अनारकली डिस्को चली, और इतना पीते हैं, इतना पीते हैं, इतना पीते हैं, संडे को यह हालत हो जाती है, घर है कहाँ, ओ है घर है कहाँ। ये था। सर, आप जब जेमी के शोज देखते हो तो आप हंसते हो या एक नोटपैड पे नोट्स लिख के फिर बाद में उनको फीडबैक देते हो? नहीं, दुकान में आपका बच्चा हो, अगर वो माल बेच रहा हो तो सीरियसली बराबर बेच रहा है कि नहीं कर रहा है, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सीरियस हो तो मैं क्यों हंसूँ? माल बिक रहा है नहीं बिक रहा है। और आप यू आर सीइंग हर ग्रो इन द इंडस्ट्री, उनका काफ़ी अभी नाम भी काफ़ी हो चुका है, तो आप जब देखते हो कि वो कोई गलती कर रही है तो आपको ऐसा लगता है कि जाके उसे बचाए, या आप उनको गिर के खुद खड़े होकर खुद सीखने का मौका देते हो? खुद सीखने का मौका मिले। मैंने कभी रिकमेंड नहीं किया उसको, कभी नहीं। इवन लंदन से आई, आके खुद जा करके कॉमेडी सर्कस में ऑडिशन दी, उनको पता भी नहीं कि ये कौन है ऑडिशन में। वो बताइए आप। मैं जब लंदन से आई तो फिर ऐसे ही हम लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए थे एंड आई थॉट कि माय फादर विल टेल मी कि वो गाइड करेंगे कि अच्छा तुम ये कर लेना, वो कर लेना। उन्होंने डायरेक्टली मुझे पूछा क्या करना है तुम्हें, तो मैंने कहा आई डोंट नो क्या करना है। तो ही सेड हाँ फिगर इट आउट। फिर मैंने कॉमेडी क्लब में कॉल किया, और फिर मैंने अभी न्यूली ओपन हुआ था मुंबई में, एंड आई जस्ट कॉल देम एंड आई सेड यू नो व्हाट, आई एम अ न्यू कॉमेडियन, आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, तो कैन आई परफॉर्म। तो उन्होंने कहा ओके विल गिव यू अ स्लॉट। वहाँ मुझे स्लॉट मिला एंड देन दे रियली लाइक मी। फिर उन्होंने मुझे शोज़ दिए कॉमेडी क्लब के अंदर, एंड देन आफ्टर दैट जब मैंने सुना कि कॉमेडी सर्कस में ऑडिशंस चल रहे हैं, आई जस्ट वेंट एंड सीक्रेटली गेव माई ऑडिशन, और दे रियली लाइक्ड मी। और जिस दिन ऑडिशन दिया उन्होंने टेप किया, एंड देन उसी दिन शाम को मुझे मैसेज आता है कि यू आर बुक्ड फॉर द एंटायर सीजन, दीज आर योर डेट्स, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, वी नीड यू ऑन द शो। एंड इनफैक्ट शो के शुरू होने के पहले तक नोबडी न्यू दैट आई एम जॉन लीवर्स डॉटर। एंड मैं गई, हमारा वर्कशॉप ही था बिफोर द शूट, एंड वी वर ऑल लाइक ऑल द न्यू कॉमेडियंस आर लाइक वर्किंग हार्ड, हम लोग स्क्रिप्ट की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। एंड ऑल द सीनियर कॉमेडियंस जैसे भारती जी हैं, सुदेश जी एंड कृष्णा एंड ऑल दीज पीपल केम, एंड दे हैड नो आइडिया कि कौन क्या है एंड ऑल, बट दे जस्ट केम कि अच्छा कौन है नए बच्चे, अच्छा कौन है तुम क्या करती हो, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, जैमी, अच्छा तो क्या कब से शुरू की तुमने कॉमेडी, एंड दे वर इंटरव्यूइंग मी एंड ऑल। फिर शूट के एक दिन पहले हम सबको बुलाया गया, एंड वी वर इन अ बोर्ड रूम एंड वी वर सिटिंग एंड वी वर टॉकिंग। तो सुदेश जी जस्ट आस्क्ड मी कैजुअली कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा जैमी। मतलब तुमने कैसे कॉमेडी करना शुरू किया, हाउ क्या सोचा क्या तुमने? मैंने कहा नहीं एक्चुअली है कोई तुम्हारी फैमिली में कॉमेडियन या कुछ है क्या, कोई इंडस्ट्री में है कोई? मैंने कहा मेरे डैडी हैं। डैडी तुम्हारे क्या करते हैं, कौन है?
जॉनी लीवर, क्या जॉनी भाई की बेटी हो, अरे तुम तुम्हारी बेटी हो, वाह क्या बात है, दे वर रियली हैप्पी। तो वैसे सफर शुरू हुआ। वहाँ के बेचारे कहाँ से लोग आते हैं, लाइन में खड़े होते हैं ऑडिशन देने के लिए, वो भी बहुत खुश हुए। बोले हम ये सोच के आते थे, हम लोग ये सोचते बैठते थे, जब आने से पहले ये सोचते थे कि इंडस्ट्री वाले अपने बच्चों को घुसेड़ते रहते हैं, ये सब अपने बच्चों को घुसेड़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि अपनी बच्ची को भी लाइन में खड़ा करो, रिकमेंड करने की ज़रूरत नहीं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इंडस्ट्री में बहुत प्यार करते हैं मुझे। इन्होंने नादिरा बब्बर से एक्टिंग सीखी, एक्टिंग कोर्स की उन्होंने वहाँ पे क्लासेस की, वर्कशॉप किया आपने, वर्कशॉप किया कितने, 1 महीने, 1 महीना। जब उनको पता चला तो क्या बोली उन्होंने, तुम जॉनी भाई की बेटी हो, तुमने मुझे बताया नहीं, पैसे ले लो तुम्हारे वापस। शी रिटर्न माई फीस एंड So, Jamie, your dad has an amazing legacy. हर कोई पहचानता है. How much pressure does that put on you? It's a huge responsibility because बहुत ज़्यादा expect करते हैं and there's so much competition today. So people expect a lot. But good thing is that he's been in this field for so long and he's made so many people laugh and people love him so much that they've accepted me also with the same love. And every time I come on stage, they give me they smile and they applaud. So it feels really special. I feel welcomed. I feel really happy to be in this place. And but I know मुझे एहसास है इस बात का कि मुझे I have to work really hard and there's a lot of competition. So I'm working on that. I keep preparing. I keep studying. I keep learning. Yeah. So that'll continue always. आप एक मेरी फरमाइश है, आप आज जितने बैठे हुए उनको एक गजल सुनाइए आप, एक लाइन, राइट? ठीक है, चित्रा सिंह जी। किस रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, किस रंजिश को मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएंगी, मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएंगी, फासले और बढ़ा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, किस रंजिश को। Amazing. अभी आप वो अमेरिकन आइडल वाले एक लाइन एज अ कॉन्ट्रास्ट, यस। One English song for you guys. And I will always love you. I will always love you. Oh, and I will always love you. Love, love, love you. Wow. That was amazing. Thank you. I try to just incorporate singing in my acts. I do comedy. I sing also, but mainly comedy. Yeah. So you're here with your father for a show. Tell us a little bit about what brings you here and what the show is about. Okay. So our show is on the 18th, as you can see, posters here and there. It's an out-and-out comedy show, Hindi stand-up comedy show. You can come with your entire family, and it's like watching a Bollywood film. आप realize नहीं करेंगे कि time कहाँ निकल रहा है, and it's just going to be, it's a hilarious, fun comedy show which you will definitely love. My father performs for 2 hours, और मेरा एक छोटा सा act है 20 minutes का, and yeah, it's just a full-on comedy show. I think Daddy can explain better. हाँ जी, हमारे 2.5 घंटे का शो है एक्चुअली। मैं एक और आर्टिस्ट है गौरव शर्मा, वो थोड़ा सा करता है, फिर हमको पेश करते हैं, मुझे पेश करते हैं, उसके बाद फिर मैं इनको पेश करता हूँ इंटरवल के बाद, फिर उसके बाद मैं आता हूँ। हमारे कॉमेडी में क्या है, पूरा आज की बातें हैं, डांस, म्यूज़िक, ह्यूमर, सारा मिक्स
पता ही नहीं चलेगा कि टाइम आपका कैसे चला गया। हमारा ये शो मैंने स्टार्ट किया तो यही सोच के कि लोग टाइम देखे, ऐसा अगर ना करे तो वो शो करने नहीं मुझे इसके आगे की, तो ये सोच के किया और शो लोगों ने बहुत पसंद किया और वही शो लेकर यहाँ पर आया हूँ। और जहाँ जहाँ मैंने शो किया लोगों ने बहुत बहुत एंजॉय किया। मैं चाहता हूँ कि सब आके एंजॉय करें शो को, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, और शो को एंजॉय करें। ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट शो है। Excellent. So I think we're out of time, guys. Let's thank Mr. John Lever and Jamie Lever for visiting us. Thank you very much. Thank you very much, sir.